हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। इश्क के सफर पे चला, हर एक कदम पे करता हुआ शुक्र खुदा, मैं सफर पे चला, जब मैंने सरजमीन नजफ पर रखे कदम, दिल ने मेरे इरादा किया या शहे उमम, या शहे उमम, ये तुझसे मोहब्बत है मेरी, आऊं जो ज़ियारत को तेरी, इब्ने अली कर ले कबूल मेरा अक़ीदत भरा सलाम, पैदल नजफ से करब बनाएगा गुलाम, अलमदद या शहे करबला, अलमदद या शहे लाफता, मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, नाज किस्मत पे करता हुआ मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, मेरे सीने में बचपन से अरमान था, आ गया अगर वहाँ से बुलावा मेरा, शाह मर्दा के दर से सूए करबला, अपने पैरों पे चलता हुआ जाऊंगा, शुक्र मौला वो दिन आ गया, मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, ज़ेबे तन करके एहराम गम चल दिया, खुद पे नादे अली करके दम चल दिया, एक छोटा सा लेकर अलम चल दिया, था निगाहों में शह का हरम चल दिया, जब ये अज़्मे सफर मिल गया, मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, उस मुसाफिर का अहवाल मुझसे सुनो, मैं नजफ से चला जिस घड़ी मोमिन, याद करता रहा मौला सज्जाद को, क्या कहूँ हौसला जो मिला दोस्त, हर कदम राह बढ़ता हुआ, मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, नौह करते हुए सोगवार आ गए, जिस तरफ आँख उठी हजार आ गए, फर्श पर अर्श से पुरसदार आ गए, थक के बैठा तो खिदमत गुजार आ गए, जिसका जी चाह जैसे चला, मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला, चलते चलते जो पैरों में छाले पड़ी, आ गए याद सब जख्म सज्जाद के, याद आए असीरों के जब हौसले, यूं लगा जैसे छाले पड़े ही न थे, उन असीरों को रोता हुआ, मैं पैदल चला करबला, पैदल चला करबला, मैं पैदल चला करबला। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی، گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی۔ صادق آل اطہار سے بھی سنا، زائروں کے لیے کہہ گئے مصطفیٰ، جس نے دیکھا حرم میرے شبیر کا، اس کو میری زیارت ہوئی باخدا۔ اس عقیدت میں بڑھتا ہوا میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ دنیا والوں یہی عشق کا ہے سفر، گامزن انبیاء بھی ہیں اس راہ پر، اس سفر کی فضیلت سے ہو باخبر، سخت سردی ہو یا سخت گرمی مگر سب کے لب پر ہے بس ایک صدا، میں پیدل چلا کربلا، پیدل چلا کربلا، میں پیدل چلا کربلا۔ خوش آمدید اے زائروں، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید اے زائروں، خوش آمدید۔ سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین، سفر عشق حسین۔ وہ ایک سلطنت عشق نام کرب و بلا، ازل سے پرچم عباس ہے نشاں جس کا، جہاں پہ نقش ہے مولا حسین کا سجدہ، وہاں پہ کرنے کو سجدہ، وہاں پہ کرنے کو سجدہ۔ بلا رہی ہے کربلا، بلا رہی ہے حسین، سب سے عشق حسین، سب سے عشق۔ کہ وہ گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں مگر اللہ کے اشارے اور اللہ کے حکم سے وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے نبی کو اپنا لیڈر، نبی کو اپنا پیروکار مانا ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر حسین کے لیے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو کچھ تو حسین کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے نبی نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آتی اگر حسین سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان میں نہ آتے اور یہ قربانی نہ دیتے۔ حسین نے کیا کیا ہے؟ بہت آسان تھا، حسین کے سامنے بیعت کا سوال رکھا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا یزید نے یہ پیغام نہیں بھیجا تھا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یزید نے پیغام بھیجا تھا کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے ہاتھ سے ہاتھ ملا لو تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ یزید کر کیا رہا تھا؟ وہ اپنے ہر مشن کو اسلام کے نام پر پروان چڑھا رہا تھا۔ یزید کے یہاں کسی ماں بیٹی اور بہن میں تمیز پیدا نہ تھا، یزید ہر اس کام کو انجام دے رہا تھا جسے اسلام نے منع کیا تھا۔ یزید اس شخص کا نام ہے جو بندروں سے کھیلتا تھا، یزید وہ ہے کہ جس کے یہاں زنا عام ہو جایا کرتا تھا، شراب خوری اس کے یہاں پانی کی طرح تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنے سماج میں عام کرتا رہے۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ کیوں نہیں ملایا؟ بہت بڑا پیغام ہے اس کے اندر، اس لیے کہ امام حسین اگر یزید کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے تو حسین بچ جاتے، آپ کی ماں بہنوں کا پردہ بچ جاتا، حسین کے بچے شہید نہ ہوتے، حسین کو کوئی اذیت نہ ہوتی، حسین مدینے میں سکون سے زندگی گزارتے۔ بس کرنا کیا تھا؟ یزید کے ساتھ بیعت کرنا تھی۔ مگر حسین نے کہا کہ مجھے اپنی ماں بہنوں کی اور اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے نانا کے اس دین کی پرواہ ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں نازل کیا گیا ہے، مگر یزید اسے ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو امام حسین نے یزید کے ساتھ بیعت کر کے اپنی جان کو محفوظ کرنا
उसे अलवियत न दी, बल्कि यजीद के साथ इनकार किया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया तक पैगाम दिया कि देखो, कभी भी कोई जालिम अगर तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहे, कभी भी कोई जाबिर और फासिक आदमी तुमसे मिलना चाहे, तो कभी उसके साथ हाथ मत मिलाना। और यही पैगाम को अमीरुल मोमिनीन ने भी फरमाया। मौला ने फरमाया कि देखो, अगर कोई भी इंसान जिसे तुम देख रहे हो कि वो जालिम है, तो उसकी कभी हिमायत मत करना, जालिम के खिलाफ खड़े रहना। कोई भी मजलूम दिखाई देता है तो उसकी हिमायत करना। अगर हुसैनी मिशन और हुसैनी पैगाम पे हमें अमल करना है, तो आज हमें अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपने अमल से ये साबित करना पड़ेगा कि हुसैन ने कल किसी जालिम के साथ हाथ नहीं मिलाया था, आज हुसैनी किसी जालिम के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक लम्हे के लिए आप ये सोचिए कि इमाम हुसैन अगर यजीद से हाथ मिलाते तो होता क्या, अगर अपनी जान की कुर्बानी न देते तो करबला में होता क्या। करबला में ये होता कि यजीद जो चाह रहा था उसे आम कर दिया जाता। यजीद ये चाह रहा था कि शराबखोरी आम कर दी जाए, चोरी आम कर दी जाए, ज़िना को आम कर दिया जाए। और इमाम हुसैन ये बात बहुत सुनते हैं कि इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। इसके मीनिंग क्या है? इमाम हुसैन की ज़ाहिरी कुर्बानी मुसलमानों के लिए समझ में आती है, मगर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि इमाम हुसैन ने इंसानों के लिए कैसे कुर्बानी दी है। आप जरा सा देखिए, ये पुलिस वाले हमारे साथ हैं, किसी के घर में रात में अगर चोरी हो जाए तो वो इनके पास आके कंप्लेन करता है कि भाई हमारे घर को रात में लूट लिया गया, हमारे घर में चोरी हो गई। यानी इसका मतलब ये है कि आज पूरे जहान में, पूरे समाज में, हर सोसाइटी में चोरी एक जुर्म है, चोरी करना एक जुर्म है। यजीद जिसके पास इतनी बड़ी हुकूमत थी, वो ये चाहता था कि अगर कोई जिना करता है तो उसे जुर्म शुमार न किया जाए, कोई चोरी करता है तो उसे जुर्म शुमार न किया जाए, कोई डकैती डालता है तो उसे जुर्म शुमार न किया जाए, दुनिया को आजाद छोड़ दिया जाए, जिसको जो करना है वो करता रहे। अगर हुसैन करबला में यजीद के मुकाबले खड़े न होते और अपनी कुर्बानी न देते तो यजीद अपनी मनमानी को आगे बढ़ाता, तो आज माशरे में क्या होता? कोई किसी भी कौम और मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके घर में चोरी हो जाती तो कोई ये न कहता कि हाय चोरी हो गई। किसी को मार दिया जाता तो कोई किसी के लिए आंसू न बहाता कि हाय इसको मार दिया गया। आप देखें फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, सोशल मीडिया पे हर तरफ है। क्यों है? इसलिए कि जुल्म को आप गलत समझ रहे हैं। कश्मीर में कहीं जुल्म हुआ तो आप उसे गलत समझ रहे हैं। अहमदाबाद में किसी को मार दिया जाए, आप देखेंगे भाई वहाँ मटरों में किसी को कत्ल कर दिया गया, तो आप हाय अफसोस कहेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, देखो कल क्या हो गया। क्यों? इसलिए कि आप जुल्म को गलत समझ रहे हैं। तो जुल्म को गलत समझना और जालिम के खिलाफ खड़े होना, यही पैगाम हुसैनी है जो करबला में हुसैन ने हमें दिया है। अगर इमाम हुसैन यजीद के साथ हाथ मिला दे तो ये जुल्म को गलत समझने की फिक्र ही खत्म हो जाती। ये जो माइंड में आता है तो इमाम हुसैन ने जो यजीद के खिलाफ किया, वो सारी हरकतें आज अगर कोई दोहराता है और यजीदियत के अफाल को दोबारा से करना चाहता है तो आपके जहन में बात पैदा होगी कि नहीं ये गलत है। ये जो सवाल पैदा हो रहा है कि ये गलत है, ये गलत सिखाया हुसैन ने, ये गलत सिखाया हुसैन ने। अगर हुसैन न सिखाते, अपनी कुर्बानी न देते तो ये गलत हमें समझ में ये ना आता कि ये गलत है। लेकिन अजीब बात है, मारने वाले मिट गए, मरने वाले जिंदा हैं। मारने वाले खत्म हो गए, मरने वाले जावेद हो गए, कत्ल करने वाले न जाने कहाँ चले गए। लेकिन जो मकतूल थे जिन्हें कत्ल किया गया वो आज जिंदा है। उनका जिक्र इस भरी बारिश में और सड़क पर भरे पानी में किया जा रहा है। मरने वाले न जाने कहाँ होंगे, मगर उनका जिक्र जो है वो पूरी दुनिया में है। करबला में इमाम हुसैन के मदफन को जाके कोई देखे, जहाँ दिन और रात की तमीज पैदा नहीं होती है। हरम इमाम हुसैन में घुस जाइए तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये दिन की रोशनी है कि रात की रोशनी है। वो नूर है, वो आलम है कि किसी को कोई अंदाजा नहीं होगा। बस दो जुमले मसायब और बात खत्म हो जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो कुर्बानी दी है वो इसलिए दी है कि हम होश में आए, इसलिए कुर्बानी दी है कि हम अपने आप को संभालें और मिशन हुसैनी को हम आगे बढ़ाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं
जो फातिमा के उस लाल को हुसैन कहा जाता है, तो उसके लिए तारीख ने लिखा कि करबला में हुसैन का गला काटा जा रहा था और आपकी माँ फातिमा आवाज दे के कह रही थी, मेरे हुसैन मेरे माजाए को ज़िबा मत करो, मैंने हुसैन को चक्कियाँ पीस कर डाला है, अरे मेरे हुसैन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ये हुसैन पर रोने वाले आज फातिमा की दुआ से हैं, ये हुसैन पे आंसू बहाने वाले आज जनाब सैयदा की दुआ से जिंदा हैं, लेकिन हुसैन के सीने पे चलकर हुसैन की गर्दन को काटने वाले वो अफराद भी मौजूद थे कि जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि दिल दिमाग में बसा था कि हुसैन के सर लेके यजीद की बारगाह में पेश करना है। अल्लाह अकबर। अरे किसी को जिस इनाम का लालच था वो इनाम भी नसीब न हुआ। अल्लाह अकबर। रिवायत का एक जुमला है कि जब करबला के मैदान में सबके सर काट दिए गए तो एक रिवायत लिखी है कि जनाबे ज़ुहैरक़ैन एक सहाबी है जिन्होंने अपनी जान को हुसैन के ऊपर कुर्बान किया। रिवायत में लिखा आज चहलम मना रहे उसी मजलूम हुसैन का हम। लिखा है तो ज़ुहैरक़ैन की ज़ौजा ने अपने गुलाम को बुलाया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने गुलाम को बुला के कहा कि मैं एक आखिरी काम तुझसे करवाना चाहती हूँ, मुझे खबर मिली है कि तेरा आका हुसैन के साथ करबला में शहीद कर दिया गया, एक आखिरी काम कर दे और मैं तुझे आज़ाद कर दूंगी। का आखिरी काम क्या है कि एक कफन ले और करबला चला जाए, अपने आका ज़ुहैरक़ैन को कफन दे देना। कफन लेके चला है, ये गुलाम करबला पहुंचा। एक मर्तबा इसकी ज़ुहैरक़ैन की वाइफ ने कहा था कि देखो हुसैन तो नबी के नवासे है ना, हुसैन को तो करबला में कफन किसी ने भी दे दिया होगा, लेकिन तेरा आका ऐसे ही पड़ा होगा, अरे कफन लेके जाए और अपने आका को दे दे। अब गुलाम ने लिखा है, रिवायत में लिखा है कि गुलाम करबला पहुंचा, कफन लेके जब करबला पहुंचा तो देखा हाथ में एक कफन है और 72 लाशें पड़े हुए हैं। अरे एक कफन किस किस को पहनाएगा। कफन लेके वापस आ गया। एक मर्तबा ज़ुहैरक़ैन की ज़ौजा ने देखा और उसको आवाज देके कहा तू कफन लेके वापस आ गया, तूने हुसैन को कफन क्यों नहीं दिया। एक मर्तबा अपने सर पे हाथ मार के कहता है मैं कफन लेके करबला में गया था, मगर जिस हुसैन की बात करती हो उसके सारे सहाबी बेगौर कफन है, एक कफन किस किस को करबला में देता। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बना क़दाइहि व तस्लीमन अमर वातनी हुसैन। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ना कर सके किया सरंबिया ने झुकाया, सरंबिया ने झुकाया, हुसैन जिंदाबाद। करबला हुसैन जिंदाबाद, करबला को बसाया, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ना अपने सर को झुकाया किसी की बैयत पर, ना अपने सर को झुकाया किसी की बैयत पर। खुदा की राह में कटाया, खुदा की राह में कटाया, हुसैन जिंदाबाद। करबला को बसाया, हुसैन जिंदाबाद, करबला को बसाया, हुसैन जिंदाबाद। है करबला को बसाया, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ना बुझ सका किसी जुल्मत की तेज आंधी से, ना बुझ सका किसी जुल्मत की
चिराग ऐसा जलाया, चिराग ऐसा जलाया, हुसैन जिंदाबाद, करबला को बसाया, हुसैन जिंदाबाद, करबला को बसाया, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, मैं तेरी जात से राजी हूँ, लौट के आजा, मैं तेरी जात से राजी हूँ, लौट के आजा, तुझे खुदा ने बुलाया, तुझे खुदा ने बुलाया, हुसैन जिंदाबाद, करबला को बसाया, हुसैन जिंदाबाद, करबला को बसाया, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, है कहते सारे मज़ाहिब, हुसैन सबका है, कहते सारे मज़ाहिब, हुसैन सबका है हर ज़बान पे आया, है हर ज़बान पे आया, हुसैन जिंदाबाद, करबला को बचाया, हुसैन जिंदाबाद, करबला को बचाया, हुसैन जिंदाबाद। कौन छतरी को बे हसी नेमत वाला खुदा हाफिज़ मन के भी अलमदारम मन के भी अलमदारम बे मुईनो बे आलम मन के भी अलमदारम बे मुईनो बे आलम अज हयात बेदारम अज हयात बेदारम वाहरा खुदा हाफिज़ नबी हसी नेमत नबी हसी नेमत वाहरा खुदा हाफिज़ करबो बला को चले पहलू हुसैन का है दिल्ली से अंदर आता है
میرے بندے ہیں اور شکر نہیں میرے پالر کیسے کنویں میں جاؤں گی کاشی کیسے کنویں میں جاؤں گی کاشی جب مرنے میں آئے گا نام ہائے تم کو کربلا میں جب آئی تو بیویاں سادات کربلا سادات کربلا تم کو کربلا میں جب آئی تو بیویاں سادات کربلا تم کو کربلا میں جب آئی تو بیویاں سادات کربلا سادات کربلا کچھ بھی تم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا سادات کربلا گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئی تربت وہی بنی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا تم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا بانو یہ بیل پر چٹھیے میرے بے زباں ماں ڈھونڈے اب کہاں بتلا دے ہے کہاں میرا سگر اے کربلا تم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا سادات کربلا قربان تیرے 嗯。
मजबूर थी बहन, मजबूर थी बहन, जिंदा में मुझसे तेरी अमानत हुई जुदा, साला करबला चलता कहा ज़ैनब ने ये रोकर, संभालो बीवियों चादर, सरे आवाज़ आका खुला सर देख लेने जैसे कोई सर गिरा नहीं है पास कर जाए तो रख लो हाथ ही सर पर, सरे आवाज़ आता है। कहा ज़ैनब ने रोकर, संभालो बीवियों चादर, कहा ज़ैनब ने रोकर, संभालो खुद हटाऊंगी मैं बचपन की तरह से, भाई का चेहरा बुलाऊंगी, अगर मुमकिन देखो दे दे कोई पानी मुझे लाकर, सरे आकाश आता है। कहा ज़ैनब ने खुला है से शरबाज़ार, रिदाला के उड़ा दे, ऐ मेरे आज़ी अलमदार, रिदाला के उड़ा दे, खुला है से
Mevla
अलविदा न चलेगा बेटा शियों के सरदार हुसैन अलविदा शियों के सरदार शियों के सरदार हुसैन अलविदा शियों के सरदार हुसैन अलविदा इनके मुख्तार हुसैन अलविदा शियों के सरदार हुसैन अलविदा
میں ہوں روی دوبے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نیوز گجرات. لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. اگر آپ کو ہماری بتائی گئی خبریں اچھی لگے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اور ہاں, اگر آپ ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ایسا نیوز گجرات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم سدا آپ سے جڑے رہیں اور آپ تک نئی نئی خبریں پہنچاتے رہیں.